Hello all my dear students, good morning to all of you. Welcome in today's class on the behalf of Subrasthit Children Academy Kalan Jaunpur. I am Ajay Prakash Tiwari, your biology teacher, and I am welcoming you all once again to your official YouTube channel, that is Biology at Your Fingers. And all my dear students, as you know, at present your chapter number 5, Principle of Inheritance and Variation, is running, and in this chapter we have completed in the last videos क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। यानी यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में जेनेटिक डिसऑर्डर जो डिस्कस किया जा रहा था उसमें हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डिस्कस किया, इन विच वी हैव डिस्कस अबाउट वेरियस काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स। दोज वर डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एज वेल एज देयर वाज सम अदर्स दोज वर नॉट पार्ट ऑफ योर NCERT. We have also discussed about that, and today we are going to discuss about a new disorder that is known as Mendelian disorder. So without wasting the time, I am starting with, and the Babe chart of Mendelian disorders is already given on your board, and in later on we will discuss one by one all these disorders in very detail. So first let's take an introduction. So Mendelian disorders, as you know, these are the disorders that follow the Mendel pattern of inheritance. Mendel pattern of inheritance. That's why this is known as what? That's why this is known as what? मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, जो मेंडेलियन पैटर्न है किसका, इनहेरिटेंस का, उसको ये फॉलो करता है। एक्चुअली मेंडेलियन डिसऑर्डर इज कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, एंड एज यू नो दिस टेक्स प्लेस ड्यू टू जीन म्यूटेशन, टेक्स प्लेस ड्यू टू जीन म्यूटेशन। यानी जो भी मेंडेलियन डिसऑर्डर आपको दिख रहे हैं, दीज आर द रिजल्ट ऑफ जीन म्यूटेशन, एंड जीन म्यूटेशन मे बी इन autosomes. It means that from chromosome pair number 1 until the chromosome pair number 22, all these are termed as autosomes. So if mutation takes place in these autosomes, that condition is known as what? Gene mutation in autosome. And gene mutation in sex chromosome, it means that, इसका मतलब क्या हुआ, mutation in last pair of chromosome, mutation in 23rd pair of chromosome. अब आप समझ गए होंगे, gene mutation in autosomes means that from pair number 1 to pair number 22. Gene mutation in sex chromosome, it means that the last pair of chromosome. So gene mutation in sex chromosome, mostly disorders are in recessive pattern. Disorders are in recessive patterns. These may be hemophilia, that is most important for your examination, color blindness. All these two are the part of your NCERT, and most important question, most probability of asking the question from this topic in your board and competitive examination. There are two more, that is night blindness, but is somehow very less significant, and the last one is that Duchenne's muscular dystrophy, DMD. All these two are not part of your syllabus. Let's consider in the same way, in gene mutation in the case of autosomes, there may be two possibilities, whether they will be dominant or they may be recessive. If they are dominant, example of that is, इसको हम क्या पढ़ते हैं, Huntington's chorea, Alzheimer's disease. Alzheimer's disease, this is a brain dysfunctioning or brain related or nervous system related disease. And here hypercholesterolemia, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, myotonic dystrophy, widow's peak, rolling of tongue, and Marfan syndrome. We will discuss all these, what in very short, because all these are not part of board exam. ये बोर्ड एग्जाम के पार्ट्स नहीं हैं, but these two, widow's peak and rolling of tongue, is a part of your practical exam. बोर्ड में अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा आपको, तो विडोज पीक और रोलिंग ऑफ टंग ये दिया जाता है पेडिग्री फाइंड आउट करने के लिए।
So all these are a part of your practical, but none of these are part of your board examination, written examination. This is very very important. Recessive disorders, these are triple star. Why these are triple star? Because phenylketonuria we have already discussed, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, लेकिन फिर एक बार बताऊंगा. This is not a part of your NCERT, not part of your NCERT, but again this is most important because this is the part of your NCERT. This one is also part of your NCERT. Again this one is a part of NCERT, and these two are not part of your NCERT. So if we find recessive disorders, phenylketonuria, sickle cell anemia, thalassemia and cystic fibrosis, all these four are part of your NCERT, but in 2020 syllabus only phenylketonuria and sickle cell anemia is given. All these two, thalassemia and cystic fibrosis, is also deleted, but we will discuss all these four in very detail, and rest is just very introductory courses. So without wasting the time, I am going to start today gene mutation in autosome, and today we will complete it. ओके बेटा, तो हम पहली कैटेगरी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम. जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम जो भी आपके एनसीईआरटी में है बेटा, वो हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे. जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम्स. द फर्स्ट वन इज हियर, दैट इज phenylketonuria. You all are familiar to this because this is an autosomal recessive metabolic disorder. ठीक है, तो ये तो बहुत ही कॉमन सा पहला वर्ड यही है. Phenylketonuria is an autosomal recessive metabolic disorder. Let's consider the second one. यहाँ पे होता क्या है, homozygous recessive individuals lacks, एक पर्टिकुलर एंजाइम नहीं होता है, lacks एंजाइम phenylalanine hydroxylase that convert phenylalanine in tyrosine in the liver. बेटा यही लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है. What is phenylketonuria? This is an autosomal recessive metabolic disorder in which a heterozygous, or we can write homozygous, obviously homozygous recessive individual lacks enzyme. वो एंजाइम कौन होता है? You have to remember, this is what phenylalanine hydroxylase. What is the role of this? This convert the phenylalanine into tyrosine, and that tyrosine later on synthesize melanin that decide the pigmentation of the body. So if this enzyme will not be present, this one will not convert into tyrosine, and then the synthesis of melanin will be disturbed. In that condition there will be uneven पिगमेंटेशन एंड मेंटल रिटार्डनेस. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि इस एंजाइम का लैक होता क्यों है? तो हम यहाँ से लिखेंगे लैक ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू एबनॉर्मल autosomal recessive gene on chromosome number 12. देखो बेटा, क्रोमोसोम नंबर 12 की बात की जा रही है, इसका मतलब ये ऑटोसोम का पार्ट होगा. तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्या हो जाता है, एबनॉर्मल ऑटोसोमल रिसेसिव जीन प्रेजेंट होता है. कहाँ?
क्रोमोसोम नंबर 12 से, जिसकी वजह से फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बन पाता है, एंड इन एब्सेंस ऑफ दैट फिनाइल एलानिन is not going to convert into tyrosine in the liver, and that will also affect the synthesis of melanin, that affect the synthesis of melanin from tyrosine in liver. It means that it affect the metabolism of tyrosine, as well as we can also write phenylalanine, resulted in accumulation of, अगर बेटा टायरोसिन में phenylalanine कन्वर्ट नहीं हो रहा तो क्या होगा, रिजल्टेड इन accumulation of phenylalanine नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपर फेनाइल एलीनीमिया। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर फेनाइल एलीनीमिया। ओके, तो यहां से अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, जहां पे होता क्या है, अफेक्टेड बेबीज are normal at birth, but within few weeks due to increase in plasma phenylalanine level suffers from mental retardedness and decreased pigmentation of स्किन, आईज, हेयर्स, etc। यानी बेटा स्टार्टिंग में जब बच्चे का जन्म होता है तो वो नॉर्मल होता है, बट जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होता जाता है वैसे वैसे फेनाइलएलानिन का लेवल ब्लड प्लाज्मा में बढ़ता जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो इकट्ठा हो जाती है, और उस कंडीशन में मेंटल रिटार्डनेस और जो पिगमेंटेशन है हेयर का, स्किन का, आइज का, वो बैडली अफेक्टेड हो जाता है। Yes, all dear students, you can see here the person that suffering from phenylketonuria and how it got tested. And second picture is just displaying in front of you, showing the phenylketonuria including its inherited mechanism and symptoms and diet that should be given to the patients. And next one is that how these got inherited from their parents to their offspring. It's inherited in recessive manner, you can see here from। तो ये टोटल है किसके बारे में बेटा, फेनिलकीटोनुरिया के बारे में। यहाँ पे मैंने बताया, एक आपको मैं बताता हूँ रिएक्शन। लेट्स कंसीडर दिस इज योर डाइट। यहाँ पे क्या है, फेनाइल एलानिन दैट इज कन्वर्टेड इनटू tyrosine, where in liver in presence of phenylalanine hydroxylase that is converted into tyrosine, and that help in the synthesis of melanin। ठीक है, तो अगर ये एंजाइम फेनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं है तो टायरोसिन नहीं बनेगा, टायरोसिन नहीं बनेगा तो मेलानिन नहीं बनेगा। ठीक है, और यही टायरोसिन बेटा बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, डोपा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और डोपा से फिर नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का फॉर्मेशन हो जाता है। चूंकि वो आउट ऑफ सिलेबस है इस वजह से उसको हम यहाँ से कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है,
टायरोसिन बाद में चल के डोपा, डोपा से फिर नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन, वो सारी चीज़ें बनती हैं। बट आपके लिए क्या है, केवल इतना ही कि डाइट, इन डाइट देयर वाज फेनाइलएलानिन that is converted into tyrosine in presence of phenylalanine hydroxylase in the liver, and that tyrosine will help in the synthesis of melanin, and later on it will also synthesize dopa, and from dopa norepinephrine, and again then there will be epinephrine. So this is whole mechanism. So this was all about the phenylketonuria. This is very important for our board and competitive examination, and this is what autosomal recessive metabolic disorder. Let's consider another one. Yes, all dear students, you can see here sickle celled RBCs and normal RBCs in front of you. Beautiful pictures is displaying. यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों sickle celled RBCs और normal RBCs, and this is the inheritance of sickle cell disease in recessive manner. It's shown in the heterozygous state. यहाँ से आप देख सकते हैं HbA normal है, HbS ये affected person है, ठीक है। दोनों को क्रॉस के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया, दोनों हमने हेट्रोजाइगस कंडीशन में लिया था, और ये जो आपके ब्यूटीफुल डायग्राम्स आपके सामने हैं, ये सिकल सेल एनीमिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके बेटा, तो हम फटाफट अब दूसरा देखेंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट है, दैट इज व्हाट, सिकल सेल एनीमिया। मैं आपको इसको प्लियोट्रॉपी में भी बता चुका हूँ। सिकल सेल एनीमिया वी हैव डिस्कस्ड इट इन प्लियोट्रॉपी. So you can watch the video of pleiotropy, but quickly we will discuss here. This is what autosomal recessive disorder in which affected person produces sickle celled hemoglobin. सिकल सेल हीमोग्लोबिन, यानी बेटा सिकल सेल एनीमिया नाम से ही क्लियर है, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें अफेक्टेड पर्सन किस तरह की हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, सिकल सेल। एक पॉइंट और देखते हैं, described by Herrick in 1910. ये ईयर बेटा हमको याद नहीं रहता, आप देख लीजिएगा। दिस इज ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। ये होता क्यों है, ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन एट 6th position of polypeptide chain of hemoglobin, जहां पे आप लिख सकते हैं बीटा चेन, hemoglobin beta chain, where glutamic acid is replaced by valine। ठीक है बेटा, यानी सिकल सेल एनीमिया क्यों होती है, ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। कहाँ, पॉइंट म्यूटेशन एट 6th position ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि किसकी होती है, ग्लोबिन प्रोटीन की बीटा चेन होती है, वहां पे ये होता है। ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, कि जहां पे ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर दिया जाता है, किसके द्वारा, वैलिन के द्वारा। और एक पॉइंट और देख लीजिए, चांसेस इन मेल एंड फीमेल इज इक्वल, यानी मेल और फीमेल में इसका जो इफेक्ट है या इसके इन्फेक्शन का या इसके डिसऑर्डर्स के चांसेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मान के चलते हैं, सपोज लेट अस, यहाँ से देखिए ये आपका डीएनए था, डीएनए का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस था जहाँ पे एक पर्टिकुलर कोडॉन था CTC, इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, क्या बना, एक GAG कोडॉन बना जो कि किसको, ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा था। ये नॉर्मल सिचुएशन में था। अगर यहाँ पे मान के चलते हैं जो T था इसको रिप्लेस कर दिया गया नाइट्रोजनस बेस A के द्वारा, तो क्या सिचुएशन आएगी, CAC हो जाएगा, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनाएगा,
यूसी और वो फिर कोड कर लेगा वैलिन को। कहने का मतलब ये आप नहीं भी कर पाते हैं, कोई बात नहीं, इतना जानिए कि यहाँ पे म्यूटेशन पॉइंट हो रहा है जिसकी वजह से 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड किससे रिप्लेस कर दिया जा रहा है, वैलिन से। अब आपके एनसीईआरटी में एक सीक्वेंस दिया गया है अमाइनो एसिड का, वो हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से पॉइंट म्यूटेशन देखते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ से देखो ये है आपकी बीटा चेन जो कि है हीमोग्लोबिन की, इसमें सीक्वेंस दिखाया गया अमाइनो एसिड 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। दिस इज इन द केस ऑफ नॉर्मल। अब अगर यहाँ पे म्यूटेशन हुआ उसको देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूटेशन। विच टाइप ऑफ म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। अब यहाँ से हम फटाफट देख लेते हैं इन सभी में कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं। यहाँ पे होता है बेटा वैलिन, हिस्टीन, ल्यूसीन, थ्रेओनीन। यहाँ पे क्या होता है, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड, हेयर ऑल्सो ग्लूटामिक एसिड। ये तो एक नॉर्मल सीक्वेंस था। अब क्या हुआ, ये वैसा ही है, वैलिन, हिस्टीन, ल्यूसीन, इसको ल्यूशाइन भी पढ़ते हैं कुछ लोग, थ्रेओनीन, प्रोलीन, एंड हियर ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, वैलिन। तो ये कौन सी पोजीशन थी, यहाँ से देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। 6th पोजीशन पे क्या हुआ, here the glutamic acid is just replaced by valine। तो ये रिप्लेस किया गया। अगर ये रिप्लेस हो गया तो यहाँ पे होगा क्या, दो चीजें होगी, रिजल्ट्स क्या आएंगे, रिजल्ट्स स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन गॉट चेंज, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन चेंज्ड, ठीक है बेटा। दूसरा शेप ऑफ आरबीसी, शेप ऑफ आरबीसी गॉट चेंज्ड। एक ही जीन की वजह से ये दो हुआ, इस वजह से हम इसको कहाँ कंसीडर करते हैं, प्लियोट्रॉपी में। सिंगल जीन कंट्रोलिंग 2 फंक्शंस। यहाँ पे देखिए दो, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन चेंज हुआ और शेप ऑफ आरबीसी चेंज हुआ, ठीक है। यहाँ से देखिए अगर ये आपकी नॉर्मल सिचुएशन है तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है बेटा, HbA, ठीक है। हम यहाँ से कैरियर देखेंगे, कैरियर में सिकल सेल बोलेंगे। तीसरी कैटेगरी है सिकल सेल। सिकल सेल कंडीशन में क्या होगा बेटा, HbS एंड इट विल नॉट सर्वाइव। क्यों, क्योंकि इसी को हम क्या कहते हैं, लीथल जीन, यानी ये सर्वाइव नहीं करेगा, ये दोनों सर्वाइव करेंगे। दिस बीवी व्हाट, नॉर्मल, ये क्या होगा, कैरियर होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिकल सेल एनीमिया। क्योंकि इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको प्लियोट्रॉपी में भी दे चुका हूँ। फ्रॉम देयर यू कैन जस्ट find out and detailed description of the sickle cell anemia is given on this board also. This is more than sufficient for all of you. You have to remember only one thing here, the shape of RBC got changed from normal spherical or biconcave to sickled cell, and second, structure of hemoglobin also got changed due to point mutation as 6th position where glutamic acid is got replaced by valine. And most important thing that the person that affect from this disease has very less oxygen holding capacity, ठीक है। तो अगर ये डिसऑर्डर हमारे लिए नुकसानदायक है तो फिर क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, नेचुरल सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ये क्या होता है, दिस इज रेसिस्टेंट और सच पीपल आर रेसिस्टेंट टू मलेरिया। ऐसे पीपल को मलेरिया नहीं होता है, यानी वो रेसिस्टेंट होते हैं किससे, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से। सो people those suffer from sickle cell anemia, they are resistant to malaria, that's why it is still in existence and not naturally selected or replaced। ये नेचर में अभी भी होता है, इसको
रिप्लेस नहीं किया गया, सिंपल रीजन इज बिहाइंड दैट बिकॉज हियर देयर इज अ सर्वाइवल एडवांटेज दैट इज रेसिस्टेंट फ्रॉम मलेरिया। सो ये दो बेटा जो आपके सिलेबस के पार्ट थे वो आपको बता दिए गए, फेनाइलकीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया। अब हम उन डिसऑर्डर्स को, रिसेसिव डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है और आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। ओके ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट टू मोर डिसऑर्डर्स. Those are autosomal and recessive. The first one is here, or we can write total. Third one is here, alkaptonuria. ये सिम्टम आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर एक नॉर्मल पर्सन की यूरिन है और दूसरा जो एल्कैप्टोन्यूरिया से सफ़र कर रहा है, और दूसरा आपको ओक्रोनोसिस दिखाई दे रही है जिसमें स्क्लेरा पे बेटा आप देख सकते हैं कुछ डार्क पाउचेज आ जा रहे हैं। दिस वॉज डिस्कवर्ड बाई वॉट गैरॉड इन 1908. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये आप सभी को पता है। क्यों? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एन ऑक्सीडेज एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ टायरोसिन रिजल्टिंग इन एक्यूमुलेशन ऑफ होमोजेंटिसिक एसिड। ठीक है, होता क्या है कि ये होगा डिजीज। क्यों? ये डिजीज तब होगी जब एक ऑक्सीडेज एंजाइम जिसका नाम होता है होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज, ये लैक हो जाता है, तो जो टायरोसिन का ब्रेकडाउन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसकी वजह से एक्यूमुलेशन हो जाता है किसका? होमोजेंटिसिक एसिड का। इसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा? इसकी वजह से क्या होता है कि टिश्यूज अफेक्टेड हो जाते हैं, हार्ट के वॉल्व्स अफेक्टेड हो जाते हैं, कार्टिलेज, कैप्सूल ऑफ जॉइंट, लिगामेंट और टेंडन्स, यानी पूरी की पूरी वहाँ पे जो आपकी कह सकते हैं फिजियोलॉजी है वो अफेक्टेड होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ऐसे लोगों की यूरिन क्या हो जाती है? ब्लैक हो जाती है। अगर वो एक्सपोज कर दी जाए किससे? एयर से। घंटे या उससे ऊपर अगर वो एयर के माध्यम में रही तो ब्लैक हो जाएगी। और ये रिसेसिव जीन जो कि नॉर्मल फॉर्म नहीं होता है, कहाँ होती है? क्रोमोसोम नंबर 3 पे। सो दीज वर ऑल अबाउट द एल्कैप्टोनुरिया बिकॉज दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। केवल इतना याद रखना है कि गैरॉड ने 1908 में डिस्कवर किया ये एक ऑक्सीडेज एंजाइम जिसका नाम क्या होता है? होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज। वो नहीं होता है। और ये रिसेसिव जो डिसऑर्डर वाला जीन है, डिफेक्टेड जीन है, वो कहाँ? क्रोमोसोम नंबर 3 पे पाया जाता है। एक और होता है बेटा एल्बिनिज्म। ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्यों होता है? टायरोसिनेज एंजाइम की एब्सेंस के कारण होता है। एल्बिनिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू टायरोसिनेज एंजाइम एब्सेंसी एज वेल एज हियर। होता क्या है कि टायरोसिनेज जरूरी होता है मेलानिन के सिंथेसिस के लिए, एंड इफ टायरोसिनेज इज नॉट देयर देयर विल नॉट बी प्रॉपर सिंथेसिस ऑफ मेलानिन इन वेरियस टिश्यूज। तो वहाँ पे बेटा डिक्रीज पिगमेंटेशन हो जाता है और ऐसे लोग एकदम वाइट दिखते हैं। मैं आपको पिक्चर्स के माध्यम से दिखाऊंगा। Yes, you can see here the picture that the person suffering from albinism बिल्कुल वाइट आपको दिख रहे हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे मेलानिन का सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है। और ये ब्यूटीफुल पिक्चर्स आपके लिए यू कैन सी एंड इमेजिन कि यहाँ पे होता क्या है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एल्कैप्टोनुरिया एंड एल्बिनिज्म। इन द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द थैलेसीमिया। लेट्स सी अनदर रिसेसिव डिसऑर्डर दैट इज थैलेसीमिया। दो दिखाई गई बेटा, एक नॉर्मल आरबीसीज आपको, दूसरी जो थैलेसीमिया से सफ़र कर रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनहेरिटेंस का पैटर्न दिखाया गया है। सिंपली ऑटोसोमल रिसेसिव है और हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैरियर्स जो हैं वो आगे चल के एक अफेक्टेड इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर रही होती हैं। ठीक है, बाकी दो कैरियर्स हैं, एक आपको नॉर्मल दिख रहा है। ये आपके कुछ डिफरेंसेस हैं अल्फ़ा और बीटा थैलेसीमिया में। यहाँ से आप देख सकते हैं अल्फ़ा और बीटा थैलेसीमिया को। सबसे पहले डेफिनेशन और उसके बाद इनके जो डिफरेंसेस मेजर हैं। तो अल्फ़ा थैलेसीमिया में बेटा अल्फ़ा चेन बढ़ जाती है, बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन, और अलग अलग इनके इफ़ेक्ट्स आते हैं। फिर आपके सामने अल्फ़ा थैलेसीमिया दिखाया गया है जो कि जीन डिलीशन होता है। यहाँ पे एक्सेस बीटा सब यूनिट्स हो जाती हैं बेटा, और एक्सेस गामा सब यूनिट्स भी जो न्यूबॉर्न्स में हो जाती हैं। ओके ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट द थैलेसीमिया। थैलेसीमिया को सबसे पहले डिस्कवर किया था कूले ने, बट इसका जो टर्म था वो डिफाइन किया गया था विपल और ब्रॉडफोर्ड के द्वारा। एक्चुअली ये होता क्या है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज़ है जो कि चिल्ड्रन में अपीयर होती है। इसकी वजह से म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ द जीन
कंट्रोलिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन, यानी जो ग्लोबिन प्रोटीन बन रही थी उसको जो कंट्रोल कर रहा था जीन, उसमें क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, जिससे जो अल्फा चेन और बीटा चेन थी किसकी, हीमोग्लोबिन की, उसकी प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पाई और ऐसी कंडीशन में एनीमिया हो जाता है। 3 तरह के थैलेसीमिया है बेटा, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा में क्या होता है, यहाँ पे अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड होती है, नाम से ही क्लियर है, और ये क्रोमोसोम नंबर 16 पे 2 जीन्स होते हैं, HBA और HBA1 और 2, ठीक है। फिर बीटा थैलेसीमिया है, इसमें क्या होता है, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लोबिन, वहाँ पे अल्फा था तो अल्फा, यहाँ बीटा है तो बीटा, ये क्रोमोसोम पे होता है, ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है, ठीक है। एक लास्ट में डेल्टा है जिसमें डिफेक्टिव एलील होता है जो HBD का, वो प्रेजेंट होता है कहाँ, क्रोमोसोम नंबर 11 पे। तो इसमें तीनों में अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है, जॉन्डिस है, इनलार्ज लीवर और स्प्लीन है अल्फा थैलेसीमिया में। बीटा थैलेसीमिया में बेटा क्या होता है कि यहाँ पे RBCs आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाती हैं और हीमोग्लोबिन के अमाउंट कम हो जाता है, तो सफोकेशन या ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है। डेल्टा में बेटा क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होती है और इसमें जो जनरल सिम्टम्स हैं एनीमिया वाले वो अपीयर होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस रिमेनिंग डिसऑर्डर्स एज वेल एज वी विल ऑल्सो डिस्कस द सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप दैट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो you will able to understand all the concept and pictures of all these disorders will be also uploaded along with the video. So don't worry. So till then, take care. Bye bye. Jai Hind.